Yesterday we have done we have done product of sum or sum of product in this class. प्रोडक्ट ऑफ सम सर, दोनों हो चुके हैं। अच्छा, दोनों हो चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम और सम प्रोडक्ट दोनों होंगे इस क्लास में। यस सर। Yes, sir. Okay, Yes, sir. perfect. So today we are going to start with a new topic, and the topic is Boolean algebra. Okay, so I'm Sir, ये just भी going हो to चुका है। start with सर ये भी हो चुका है। अरे बच्चे स्टार्ट तो करने दो, Boolean algebra बहुत बड़ा है। अच्छा, ओके ओके ओके। What? Let me start. Boolean algebra में भी बहुत सारे parts हैं, ठीक है। Today we are going to discuss about the laws in Boolean algebra. Okay, so Boolean algebra laws. Okay, or you can say the rules. ठीक है। I hope screen is visible to all. ठीक है। So whenever we talk about the laws or the rules in Boolean algebra, we have different types of rules. ठीक है। तो पहला जो rule है, the first rule which I'm writing over here, the name of the rule is complement. ठीक है, complement. तो जब भी हम complement की बात करते हैं, this rule says that if you're having a value 0 and you're converting that value into 1, ठीक है, so it is written like this. So 0 has been converted into 1, it is known as a complement. Or if you're having a 1 and you want to convert it into a 0, then it will be like this. तो 1 से 0 बन रहा है and 0 से 1 बन रहा है, तो this is known as the complement. This is known as the complement. This point is clear for all? यस सर। ठीक है। So if the value is given, 0 is being given to you and you are converting that value into 1, ठीक है, it is known as a complement. Vice versa, if the value 1 is being given to you and you're converting that value into 0, then it is also known as the complement. Okay, so how we write the complement? Suppose the value 0 is being given and you're converting that value into 1. So suppose a represents 0 and you're converting that value into 1, and then the a will be represented by a complement, which is written like this. Point is clear? So if 0 value has been given to you and it says that the value 0 represents a and the complement of 0 is 1, then 1 is represented in terms of a as a dash. ये point clear हो गया सबको? I hope. यस सर। ठीक है। On the other hand, if another value has been given to you, for example, another value has been given to you, the value is 1 and you are converting that value into 0. ठीक है। So 1 represents, for example, a, and a is changing its value to 0, that will be a complement, for example. I hope logic is clear. यस सर। Okay, Yes, sir. so whenever you encountered a complement, then a complement has been represented like this, a dash. Okay, and whether it is a 0 or it is 1, if it is converting from 0 to 1 or 1 to 0 or vice versa, then in that case a becomes a complement. I hope this point is clear. Can I move further? So this is the first law. So the first law that you have understood right now, the name of the law is, or rule is, complement rule. This rule says that if the value is been 0 given to you, okay, how you can convert that into 1 and how it has been represented. Okay, now let's talks about second rule, rule number 2. Okay, so the second rule is and rule, and and. Okay, अब and rule आपको पता है क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा है। तो if I say a, okay, dot a, then what will be the output? If I multiply a dot a, the output will be a. Similarly, what I do, if I do a dot 0, what will be the output? It will be 0. Somebody is in, so let me cross check who is in. Okay, so if I multiply a by 0, then the output will be 0. Similarly, if I multiply a by 1, okay, then output will be a. Similarly, if I multiply a by a, then the output will be a. I hope this point is clear. Okay. Yes. Yes. Yes, sir. Okay, so this rule says that and rule, and the and rule over here is depicted with the help of dot operator. तो dot यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ऑपरेटर, ठीक है, तो वो आपका and rule है, ठीक है। ओके,
ये रहा आपका एंड रूल। ये पॉइंट क्लियर हो गया है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि a मल्टीप्लाई बाय a जो है वो a होता है, a मल्टीप्लाई बाय 0 आपका 0 होता है। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय 1 इज a एंड इफ यू मल्टीप्लाई a इंटू a then it is a। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कैन आई मूव फर्दर? सो 2 रूल्स आर क्लियर फॉर ऑल। अभी हम रूल्स को यूज करके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। बूलियन रूल्स समझ में आ गए? दोनों रूल समझ में आ गए, कॉम्प्लीमेंट रूल एंड रूल। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। सबने लंच तो कर लिया है ना? नो। वेरी No, गुड, sir. No, sir, अभी नहीं गुड किया। गुड 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 गुड। कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं किया, फिर भी आवाज अच्छी आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रूल इज, आई एम राइटिंग द सर थर्ड रूल। आपने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी है। Yes, sir. इसके मैंने स्टॉप नहीं करी है बच्चे, वो ऑटोमेटिक नेटवर्क की वजह से स्टॉप हो गई होगी। मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये स्टॉप अपने आप ही हो गई है। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग आप सबको दिख रहा है? यस सर। Yes, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड रूल हमारा कौन सा है? थर्ड रूल है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटिव, एक चेंज कर लेते हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके, distributed। ठीक है, तो next rule is distributive and what this rule says, this rule says if you're having values a, ठीक है, plus b plus c, then distributed rule क्या कहता है? distributed rule ये कहता है कि a plus b plus c अगर आपने लिखा है तो इसको हम distributed rule के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिखते हैं a plus b ब्रैकेट, फिर हम लगाएंगे डॉट और फिर लेंगे a प्लस c। तो ये देखो, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। एक में कोई बच्चा आया है आई थिंक, ओके। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड रूल है। डिस्ट्रीब्यूटेड रूल ये कहता है कि a को एक बार b के साथ लिखो और a को एक बार c के साथ लिखो। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रूल आ गया है। ठीक है, लिखने का तरीका समझ में आ गया सबको? ऐसे Yes, लिखना है डिस्ट्रीब्यूटेड रूल। आपको जो है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या रूल जो है, ठीक है, इसको हम लॉ भी बोलते हैं, रूल भी बोलते हैं। तो ये जो रूल है, इसको आपको लिखना कैसे? ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जैसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक और तरीका क्या है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हम बात करते हैं इसका, ठीक है, तो हम लिखते हैं a, ठीक है, डॉट b प्लस c और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे और इसको जब एक्सपैंड कैसे करेंगे तो हमारा होगा a डॉट b, ठीक है, प्लस a डॉट c, जिसको हम आगे जाके ऐसे लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं आगे जाके ए बी प्लस ए सी। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ये पॉइंट क्लियर हो गया है? आपने Yes, sir. आपने ए Yes, को sir, हो बी के गया। साथ मल्टीप्लाई किया और ए को फिर सी के साथ लिख दिया, तो वही चीज है ये। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ये आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ लिया है, इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर हो गया है। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट Yes, टाइप sir. ऑफ रूल इज रूल नंबर 4। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं और। सबको पता है और हम यूज करते हैं, और हम किस लिए यूज करते हैं ये भी आपको पता है। यस सर। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट और आपका प्लस के लिए होता है। ठीक है, तो हम फिर से वैल्यू इनपुट करते हैं। a प्लस ए है तो आउटपुट क्या होगा आपका a। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है a प्लस 0, a प्लस 0 अगर करते हैं तो आउटपुट क्या होता है a। अगेन हम लिखते हैं, ठीक है, a प्लस अगर हम क्या करते हैं 1, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा आपका 1। ठीक है, और नेक्स्ट है a इंटू ए करते हैं a, ठीक है, प्लस a अगर हम करेंगे तो आउटपुट क्या होगा 1। तो ये आपका और वाला रूल है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ये आपको मेमोराइज करने हैं, ये आपको याद रखना सर आपने सबसे टॉप पर भी a प्लस ए लिखा और लास्ट में भी a प्लस ए। हाँ, क्या कह रहे बच्चे? सर आपने लास्ट सबसे टॉप में हाँ, वो लास्ट वाला मैं सही कर दे रहा हूँ, मैं अभी आ रहा था उस पे।
यहाँ पे a प्लस ए डैश कर देते, ठीक है, डैश है यहाँ पे, ठीक है, a प्लस ए डैश, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपके ये जो है आपका यहाँ पे भी मतलब जो आपका लिखने का जो तरीका है, यहाँ पे भी हमारा एक डैश मिस हो गया था, तो इसे हम डैश लगा लेते हैं यहाँ पे, ये रहा रूल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका a डैश ये है ना, ये चीज, ठीक है, वैसे ही वो यहाँ पर है, बस मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस यूज हो रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, वो राइटिंग में कभी कभी हो जाता है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल के सामने करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल आपका जो है यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। नेक्स्ट रूल आपका है डी मॉर्गन्स रूल, ये एग्जाम में जरूर आता है और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ या रूल क्या कहता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसमें क्या वैल्यू होती है, इसमें वो ये कहता है, स्पेस ले आते हैं, एंटर दबाते हैं यहाँ पे, यही कहता है a प्लस बी, अगर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास है, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, अगर a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, देखो a, ठीक है, प्लस है तो डॉट आ जाएगा प्लस की जगह, और फिर आ जाएगा आपका b, तो a भी हो जाएगा, और ये डैश जो है, डैश आपका मिल जाएगा इंडिविजुअल वेरिएबल से, तो हो जाएगा a डैश प्लस डॉट b डैश, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? तो अगर आपके पास a प्लस बी होल डैश दिया हुआ है, तो उसको एक्सपैंड करेंगे तो a डैश डॉट b डैश। पॉइंट क्लियर है सबको? आगे बढ़े? यस ठीक सर। है। और आगे अब नेक्स्ट है, मतलब तरीका दिया हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ के, दो तरीके हैं, एक तो ये है और एक दूसरा तरीका है a डॉट b का अगर हम होल डैश करते हैं, देन व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका मैं अगर होल डैश करूंगा, ठीक है, तो इसको हम फिर लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, ये आपको मेमोराइज करने हैं सारे, ठीक है। तो ये होगा a प्लस बी डैश, a डैश प्लस b डैश, तो मतलब ये है कि ये a डैश और फिर प्लस b डैश, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबको? डी मॉर्गन्स लॉ हम कैसे लिखेंगे, और लॉ कैसे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लिखेंगे, एंड लॉ कैसे लिखेंगे, और कॉम्प्लीमेंट लॉ या रूल कैसे लिखेंगे। तो ये कुछ है आपके लॉज जो कि आपके यूज होते हैं बूलियन अलजेब्रा में। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes. Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। ठीक है फिर, ओके। तो एक चीज मैं आपको नई चीज यहाँ बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है a, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है a, ठीक है, और a का मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, अगर आपको पता है a का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखते हैं, आपको पता है हम ऐसे लिखते हैं, a कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, ये a कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं करता हूँ कि इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट में ले लूँ, मतलब इसका अगर मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, तो आप देख लो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका, a कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट का फिर से मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, तो उसको लिखने का तरीका, एक ये ब्रैकेट, ठीक है, और एक ये ब्रैकेट, ठीक है, और इसका मुझे एक और बार कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हमारा ऐसे होगा। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ए कॉम्प्लीमेंट था, उसका फिर से मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए के, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपके सामने ये 5 लॉज है, और इन 5 लॉज को आपको यूज करके, ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल से हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमें करना कैसे है, ठीक है, हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे, आई होप स्क्रीन सबको विजिबल है, एग्जाम्पल 1, Yes, sir. ठीक है, okay। यस सर। तो मेरे पास क्वेश्चन जो आया है, ठीक है, वो है ए बी प्लस, ठीक है, ए बी डैश, तो डैश के लिए मुझे ऊपर लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने डैश। तो बस सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ये डैश, और ये किसके बराबर है, ये मेरा है किसके बराबर, ए के बराबर है, वो कह रहा है भाई ये ए के बराबर है, ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि भाई इसको आप सॉल्व करो, किसके थ्रू, आप ये ऊपर जितने लॉस दिए हुए हैं, इन लॉस को यूज करके आप इनको सॉल्व करो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है,
इस इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि लिखने का टाइम बच जाएगा थोड़ा। कॉपी किया और इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे ले आया सोल्यूशन में, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर आप चाहो तो फंक्शन में भी लिख सकते हो, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन आ गई है और मैंने लिख लिया एफ इक्वल टू, इसको मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया है एफ इक्वल टू ए, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको, ये कैसे आया सबको, ये मैंने कर Yes, दिया एफ sir. इक्वल टू ए बी प्लस ए बी डैश, ठीक है। तो अब आपको सोल्यूशन सॉल्व कैसे करना है आपको, ठीक है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे इस इक्वेशन में, सबसे पहले देखना है कोई कॉमन चीज इसमें है, कोई कॉमन Yes. चीज है, A. ए कॉमन। Yes, sir. तो हाँ, तो हम क्या लिखेंगे एफ इक्वल टू ए, अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से तो मेरे पास क्या बच जाएगा बी B plus प्लस बी डैश बन जाएगा, है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। Yes, तो आपको sir. इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो बी प्लस बी डैश हो गया। अब क्या है रूल, क्या कहता है रूल, ये कहता है कि अगर आपके पास ए प्लस ए डैश है तो किसके बराबर है, वो One. वन के बराबर है, ठीक है। तो Yes. अगर मैं इसको यहाँ पे डैश लगा लेता हूँ, ठीक है, वन डैश लगा लेता हूँ, तो आप रूल अगर देखोगे तो ये रूल कहाँ दिया हुआ है, ये रूल और वाला दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है। अगर ए वेरिएबल है तो ए होगा, और अगर मैं यूज कर रहा हूँ बी वेरिएबल, अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो होगा बी प्लस बी डैश, जो कि किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको, Yes, sir. ठीक है। तो b प्लस बी डैश जो है वो और लॉ के हिसाब से क्या होता है, वन के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे f इक्वल टू a डॉट वन। ये क्लियर हो गया सबको, ये चीज F क्लियर हो equal गई, to X. Sir. है ना, ठीक। और अगर आप रूल, ये वाला रूल देखोगे a डॉट वन, तो a डॉट वन किसके बराबर है, a के बराबर है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, f इक्वल टू a हो गया, तो f इक्वल टू a हो गया। तो आपने देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड से हमने ये देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, और राइट हैंड साइड पे हमारी क्या वैल्यू आ गई, a आ गई, A. Equal. क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर है। क्लियर हो गया सबको ये चीज, Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे कितने इनपुट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 2, sir. Sir, 2, sir. टू, वेरी गुड, टू इनपुट वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे दो इनपुट वेरिएबल हम यहाँ पे इधर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए, ए और दूसरी वैल्यू है बी, ठीक है। और हमारा फंक्शन क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, एफ इक्वल टू, एफ की वैल्यू क्या है, ए बी A, B. Plus A, B. ए बी डैश, ठीक है। चलो इसको अब मैं इसके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ। तो ट्रुथ टेबल जब भी आप बना रहे हो आपको ये फॉर्म यूज करना है, ये फॉर्मेट यूज करना है। तो ये आ गया। तो अब हम पहले वैल्यू ए की डालते हैं 0 0, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी 0। तो अगर मैं ए की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ और बी की वैल्यू, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट रह गया, मैं कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ यहाँ पे, राइट। अगर ए की वैल्यू में 0 यूज कर रहा हूँ और बी की वैल्यू भी अगर मैं 0 यूज कर रहा हूँ, तो आउटपुट पे मेरा क्या आएगा, तो वो कैसे निकालना है मुझे, देखो यहाँ पे इसको मैं अलग से कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ए की वैल्यू मेरी क्या है 0 और बी की वैल्यू क्या है 0, तो ए की वैल्यू मेरी क्या हुई 0, बी की वैल्यू क्या हुई डॉट 0, प्लस ए की वैल्यू क्या हुई 0 और बी की वैल्यू क्या होगी 1. 1, Yes, sir. ठीक है। तो ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, है ना, और प्लस 0 इंटू 1 भी 0 हो जाएगा। तो आउटपुट पे क्या आया 0। तो ये जो 0 आपके सामने आया है, ठीक है, ये 0 आपका कहाँ पर आएगा, ये 0 आएगा यहाँ पर। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसमें कोई डाउट नहीं, sir. ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी आएगी 0 1। तो इसी इक्वेशन में हमें 0 1 डाल के पुट करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं फिर से वही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर से मुझे ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो जाए कि करना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे करके दिखाते हैं। Sir, 0 आएगा. हाँ, तो 0 आएगा। जैसे कुछ बच्चे नए हैं जिनको नहीं आएगा, तो ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, डॉट बी की वैल्यू 1 है, फिर प्लस ए की वैल्यू आपकी 0 है और डॉट बी की वैल्यू आपकी, क्योंकि 1 है तो 1 क्या हो जाएगा 0,
ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 प्लस 0, तो आएगा आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 0। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। दिस पॉइंट Yes, इज क्लियर। नेक्स्ट इज 10। 10 के लिए क्या आएगा आउटपुट, कोई बता सकता है बच्चा? सर 0 ही आएगा, Zero. जब तक 0 आता रहेगा। हैं? सर 0 आएगा जब तक ए और बी की वैल्यू में 0 आता रहेगा। तो क्या आएगा वैल्यू बताओ? 1 आएगा, 0 आएगा? 0 सर 0। अच्छा, सॉल्व करके देखें, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ 1 आएगा, तभी मैं कह रहा हूँ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ऐसे हवा में बात नहीं करना बच्चे, ये मतलब देख के नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इसी के मार्क्स होंगे। कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं इधर ले आता हूँ ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखो ए की वैल्यू क्या है आपकी, 0। बी की वैल्यू क्या है, सॉरी, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, प्लस जब हम करेंगे ए की वैल्यू आपकी क्या है, 1, और बी की वैल्यू क्या है, 0 पर 1 हो। 0 है तो 1 हो जाएगा। यस। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो आउटपुट क्या आया, 1। 1 समझ गए बच्चे? यस। जल्दबाजी भी नहीं करना। ठीक है, सिमिलरली इसका भी 1 होगा, और ये 1 हो गया, और आउटपुट इसका 1 होगा। समझ में आ गया सबको कि कैसे हमें करना है सॉल्व? अब Yes, sir. सबको समझ में आ गया? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। 2 ही 3 बच्चे यस बोल रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? 36 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन। यस सर, समझ आ गया। यस सर। ठीक है, अब आप देखो, अब आप यहाँ पे देखो, एफ वाला जो कॉलम है इसकी वैल्यूज देखो, और ए का जो कॉलम है आप इसकी वैल्यूज देखो, ये बराबर है ना? यस, इक्वल। यस Yes, sir. ए इक्वल टू एफ। ठीक है, तो ए इक्वल यहाँ 1 में इधर लिख के दे रहा हूँ, छुप गया हूँ। ठीक है, तो देखो, तो ए इक्वल टू एफ हमारे यहाँ से पता लग रहा है, जो ए की वैल्यू है, ए कॉलम की वैल्यू है, वही एफ कॉलम की वैल्यू है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो आपने क्या किया, आपने ट्रुथ टेबल के थ्रू आपने क्या किया, आपने चेक कर लिया कि भाई वैल्यूज है या नहीं है, सही है या नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, दिस Yes, पॉइंट इज sir. क्लियर? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो। एक सेकंड। I hope everyone has taken the screenshot. यस सर। यस। यस Yes, sir. Yes, sir. यस। Okay. Perfect. So I am just writing one more this equation. ठीक है, आप लोग क्या करोगे, इसको अभी सॉल्व करो और मुझे इसका आउटपुट बताओ। ठीक है, तो आई एम जस्ट राइटिंग द इक्वेशन ओवर हियर। ठीक है, यहीं पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आपको मुझे आउटपुट बताना है। ए बी प्लस ए बी डैश सी, ठीक है, प्लस ए बी डैश सी डैश। ओके, तो इट विल बी ए बी डैश, ओके, एंड सी डैश। ठीक है, so this is the equation everyone. Please solve the equation and tell me the final value. और final value आप कैसे दिखाओगे?
फाइनल वैल्यू आप टाइप कर देना। अब फाइनल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, फाइनल वैल्यू आपकी ऐसे आएगी, ये जो आई है एफ इक्वल टू जहाँ पे ए आया है वैसे, ठीक है। हरी अप प्लीज डू एवरीवन, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। रफ में करो, कहीं पे भी करो। No, A is not the answer. बच्चे, फरदीन खान इसको ऐसे लिखते हैं F इक्वल टू ए। फरदीन ऐसे लिखना है F इक्वल टू ए, तब ये माना जाएगा। ओके सर, ओके। ओके, खाली ए नहीं, F इक्वल टू ए, तब ये माना जाएगा, वरना वो सिंगल फंक्शन कौन सा है, तो आंसर आपका ए है, ठीक है, लेकिन F इक्वल टू ए आपको ऐसे पूरा लिखना है, ठीक है। तो आप चैट बॉक्स में सोल्यूशन टाइप करके दिखाओ, क्या आपने सोल्यूशन किया है, ठीक है। डी मॉर्गन्स ऊपर का यूज करके आपने क्या सोल्यूशन किया है, तो चैट बॉक्स में आप टाइप करके दिखाओ फरदीन। इन द मीनवाइल फरदीन इज राइटिंग द आंसर, ठीक है। हैव सम पेशेंस एवरीवन। आई होप सबको प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. You're done? Please reply through chat box.
Anyone else can type the answer if you want. कोई भी बच्चा आंसर शेयर कर सकता है यहाँ पे सॉल्यूशन. अपनी स्क्रीन भी आप शो करके शेयर करके दिखा सकते हो. अशरफ, am I audible to all? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, कर रहा हूँ मैं अभी सर. अरे कोई बात नहीं, अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दो कैसे तुमने सॉल्व किया है, सबको पता लग जाएगा. अच्छा सर, एक मिनट. हाँ अब्दुल, अपनी स्क्रीन आप शेयर करके दिखा दो. ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ. ओके, हाँ ये अब्दुल ने कर दिया. तो ए भी आपने यहाँ पे निकाल लिया है. ठीक है, ए बी डैश कॉमन ले लिया है. सी प्लस सी डैश 1 होता है. ए बी निकाल लिया ए. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? देख लो सोल्यूशन में. एवरीवन प्लीज क्रॉस चेक द सोल्यूशन. इसको मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि सबको पता लग जाए कि कैसे सॉल्व हुआ है ये. तो इट्स ओवर हियर. ठीक है, तो सोल्यूशन आपका ये है. ठीक है, जो इन बच्चे ने लिख के दिया. ठीक है, तो ये है आपका सोल्यूशन. ठीक है, इस क्वेश्चन का. तो इसके बाद आपको फिर से वही ट्रुथ टेबल बनानी है. अब्दुल, सबको ऐसे ट्रुथ टेबल बनानी है जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है ट्रुथ टेबल. ठीक है, और Yes. आपको इसको प्रूव करना है. आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड बाय ऑल. यस सर. इस चीज को आप टाइप कर लो. ठीक है, और ऊपर जो लॉज यूज हुए हैं, ठीक है, उन लॉज को यूज करके आपको क्या करना है, आपको जो है इसको सॉल्व करना है. ठीक है, यस सर. कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? नो सर. नो सर. ठीक है, फिर ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसको मैं रब कर रहा हूँ. स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो जिसने नहीं लिया. स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया है. कैन आई मूव फर्दर? यस सर. यस सर. Yes, sir. ठीक है, फिर ओके. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक और इज ADDER एडर. ठीक है, नेक्स्ट इज एडर. ठीक है, एडर, इसका नाम ही ऐसा है एडर. तो बेसिकली एडर होता है क्या है? तो जब भी हम एडर की बात करते हैं तो मैं यहाँ पहले डेफिनेशन टाइप कर लेता हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों को पता लग जाए कि एडर होता है क्या है. ठीक है, एडर आपका एडर एक आपका बोल सकते हो डिजिटल सर्किट होता है. ठीक है, सर्किट होता है जो कि इट्स अ डिजिटल, ठीक है, सर्किट. ठीक है, विच इज यूज, ठीक है, विच इज यूज परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन. ठीक है, एडिशन ऑपरेशन जो होता है, एडर इज अ डिजिटल सर्किट. ठीक है, यूज टू परफॉर्म, ठीक है, एडिशन, ठीक है, ऑफ नंबर्स और इंटीजर वैल्यूज. तो इंटीजर वैल्यूज जितनी भी है उसका एडिशन किसके थ्रू परफॉर्म होता है? ठीक है, यहाँ पे एडर के थ्रू होता है. ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो जब भी आप एडर की बात करते हो तो ये एक टाइप का डिजिटल सर्किट है. ठीक है, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर बहुत सारे टाइप की कैलकुलेशंस होती है, लेकिन वन ऑफ द कैलकुलेशन इज एडिंग अ नंबर. ठीक है, तो नंबर्स को ऐड करने के लिए व्हाट वी यूज एडर. ये पॉइंट क्लियर हो गया है? यस सर. Yes. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ. ठीक है, इट इज यूज टू ऐड, ठीक है, 2 और 4 बिट्स. अगर 2 या 2 से ज्यादा बिट्स हैं तभी ये आपका, ठीक है, क्या करेगा, ये एडिशन परफॉर्म करेगा. ठीक है, ऑब्वियसली किसी भी उसको ऐड करने के लिए आपको मिनिमम 2 वैल्यूज तो चाहिए. ठीक है, तो 2 वैल्यूज को वो यहाँ बोल रहा है 2 बिट्स, तो मिनिमम 2 बिट्स इसको चाहिए टू परफॉर्म अ एडर ऑपरेशन, टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन. ये क्लियर हो गया है सबको? यस सर. यस सर. किसी को कोई डाउट?
नो सर। नो सर। सरल और बेसिक और हिंदी भाषा में अगर मैं बोलता हूँ, एडर एक टाइप का आपका सर्किट है, ठीक है, जो कि दो या दो से ज्यादा नंबरों को ऐड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं और मिनिमम 2 बिट चाहिए होते हैं, ठीक है, एडर को एडिशन परफॉर्म करने के लिए। ये चीज क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं। अब मैं बताता हूँ कि एडर चलता कैसे, मतलब इसका हम कॉम्बिनेशन डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन डायग्राम बनाने के लिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है, ठीक है। और ये कहता है कि भैया यहाँ पे जो है इसके अंदर सेट ऑफ इनपुट्स है, यहाँ से इनपुट है और यहाँ से आपका आउटपुट है। ये एडर का काम है, ठीक है। तो इनपुट होता है यहाँ से, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करो, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपका आउटपुट, जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको? यस है? सर। चलो ठीक है। अब एडर के भी बहुत सारे टाइप के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका है जिसका नाम है, उसका नाम है हाफ एडर। क्या नाम है? हाफ एडर, HALFADDER एडर। तो हाफ एडर एक आपका टाइप, फर्स्ट टाइप है आपका किसका? एडर का। ये पॉइंट क्लियर हो गया है? फर्स्ट ये क्लियर हो गया कि हाफ एडर एक टाइप है किसका? एडर का, ठीक है। यस सर। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब हाफ एडर का डायग्राम आपका कैसे होता है? हाफ एडर का डायग्राम ऐसे ही होता है जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है। इसको मैं हाफ एडर के डायग्राम को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई हाफ एडर में इनपुट्स डालने हैं। तो इनपुट्स के लिए मैं कुछ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लेट मी पुट सम वैल्यूज ओवर हियर, ठीक है। तो इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज पुट करी है एडर के अंदर, ठीक है। अगर 2 वैल्यूज ए और बी इनपुट जा रहे हैं तो आउटपुट कितने कॉम्बिनेशंस का होगा? कितने कॉम्बिनेशन का आउटपुट होगा अगर ए और बी इनपुट है हमारा? कोई बता सकता है? कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे यहाँ पे ए और बी के? तो 1। अच्छा, 0 0 0 1 2 स्क्वायर 4 1 4 होंगे भाई। 4 0 1 1। ये आ गया ना सबको? ये सबको Yes. आ गया? हाँ, तो ये आपका क्या हो गया? ये इनपुट हो गए आपके, ठीक है। अब क्या होता है जब आप एडर पे काम करते हो, व्हेन यू वर्क ऑन एडर, ठीक है, व्हाइल क्रिएटिंग दिस ट्रुथ टेबल, इसके अंदर एक चीज आपको ऐड करनी होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एडर में क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं एस मतलब होता है सम, और सी आपका होता है कैरी। सी स्टैंड्स फॉर कैरी। तो एस स्टैंड्स फॉर सम, तो यहाँ पे मैं सम लिख रहा हूँ ताकि ये वेरिएबल आपको याद रहे, और सी मतलब कैरी। सी आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है सबको? जब भी आप एडर पे काम करते हो, ठीक है, तो एडर में क्या होता है, ठीक है, आपका सम होता है और कैरी होता है, क्योंकि आपके 2 इनपुट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आउटपुट स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि 2 आउटपुट आ रहे हैं, एक सम के लिए, एक उसके लिए, कैरी के लिए। तो यहाँ पे भी हमारे 2 आपके आउटपुट होंगे, जिसमें एक आपका सम के लिए होगा जिसको हम एस बोलते हैं, और दूसरा कैरी के लिए होगा जिसको हम सी बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया है? किसी को कोई डाउट? नो सर। कैरी आपका ये हो गया, एंड हियर यू हैव सम, एस स्टैंड्स फॉर सम, तो SUM सम, ठीक है। अब आओ यहाँ पर, इसको करना कैसे? बहुत ध्यान से आप देखो। अगर मैं 0 + 0 करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा? सम क्या आएगा? 0 0 आएगा। 0 आएगा। कोई कैरी हो रहा है? नहीं, कोई कैरी तो हो ही नहीं रहा है, तो कैरी 0। नहीं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? यस ठीक है, सर। ठीक है। कैसे? अब इसको मैं अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो देखो, ए की वैल्यू मेरी क्या आ रही है? 0। बी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। ठीक है, 0 0 0 जाएगा तो सम क्या आएगा इसका? 0, और कैरी में क्या जाएगा? 0। पॉइंट क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू, हमारी नेक्स्ट जो वैल्यू है दैट इज 0 1। 0 1 को अगर मैं ऐड करता हूं तो सम क्या आएगा? 1। कैरी क्या जाएगा? 0, क्योंकि कुछ कैरी है ही नहीं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 1 0 करता हूं, ठीक है, तो हमारा सम क्या आएगा? 1, और कैरी क्या आएगा? 0। लेकिन अगर मैं 1 1 करता हूं तो 1 1 में हमारा 1 1 1 + 1 आपका क्या होता है? 2। 2 को हम लिखते हैं मतलब 1 0 के फॉर्म में। तो सम क्या आएगा इसमें? सम आपका आएगा 0, और कैरी क्या आएगा?
1। 1। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गई? मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। 1 + 1 आपका क्या होता है 2, और बाइनरी में हम 2 को लिखते हैं 1 0। ठीक है, तो हमारा सम क्या हुआ यहाँ पे 1 0 होगा, 0 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और आपका जो 1 है वो कैरी चला जाएगा नेक्स्ट उसमें। लॉजिक क्लियर हो गया सबको? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये जो आपके सामने जो एडर बन के आया है, ये इसको हम बोलते हैं HAL, हाफ एडर। ये आपका हाफ एडर है। ठीक है, तो हाफ एडर का ऐसा आएगा आपको। ठीक है, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये आपको समझाना पड़ेगा, ये सारा है। ठीक है, हाफ एडर। पॉइंट क्लियर? सर एडिशन तो और गेट में भी होता है। हाँ हाँ एडिशन तो और गेट में भी होता है, फिर हमें इसकी क्या जरूरत है? हाँ, तो वही तो लग रहा है भाई। ये देखो ना, ये आपका बेसिकली ये किस लिए यूज होता है, जो आपका जो एडर जो है ना, जब भी आप कॉम्बिनेशन सर्किट बनाते हो, ठीक है, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यूजिबिलिटी क्या है? सो व्हेनेवर यू डिजाइनिंग अ चिप और समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे क्या है कि अगर आप देखोगे तो वही चीज लग रही है। ठीक है, वही चीज लग रही है। यस एडिशन परफॉर्म यहाँ पे भी वही हो रहा है। ठीक है, तो जब अगर आप 2 बिट्स को, अगर आपसे वही बात आ जाती है ना, अगर आप 2 बिट्स को, ये पहली बिट और दूसरी बिट ये, ठीक है, अगर आप इनको 2 बिट को अगर आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है, और अगर आप रिजल्ट आप ये देखना चाहते हो कि भाई इसकी कैरी कोई वैल्यू आ रही है, उसको भी अगर हमें शो करना है आप एडर के थ्रू, तो हम यहाँ पे उसी चीज को हम जो आपका कॉम्बिनेशन सर्किट वाला जो डायग्राम है उससे हम शो करते हैं। ट्रुथ टेबल से भी हमने शो किया यहाँ पे, तो ये आपके सामने ये जो बन के आ रही है ये है ट्रुथ टेबल, और ये जो डायग्राम बन के आ रहा है ये है कॉम्बिनेशन सर्किट का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉजिक डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? कोई डाउट? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए इतना ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आगे क्लास में हम आगे नए से करेंगे। प्लीज एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट। मैंने अभी एक लिंक शेयर किया था ना क्लास में, गूगल फॉर्म का, गूगल क्लासरूम का। यस सर। आई होप सबने ज्वाइन कर रही होगी, क्योंकि वो क्लासरूम में क्या होगा, जब आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे प्रैक्टिकल फाइल्स के वो सब, तो आप वहां पे अपलोड करोगे। ठीक है, जैसे ही आप अपलोड करोगे ऑटोमेटिकली मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, किस बच्चे ने किस वक्त कौन सा असाइनमेंट अपलोड किया है। ठीक है, ओके सर। ओके तो सबको ट्रैक करने के लिए और अटेंडेंस को करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम जो है आपको किसी ना किसी क्लासरूम, अगर मैं कुछ काम दे रहा हूँ या असाइनमेंट दे रहा हूँ या प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तो आप सबमिट कहाँ करोगे? तो आप गूगल क्लासरूम में अपलोड करोगे। तो जब आप अपलोड करोगे तो पहली शीट पे आपका नाम रहेगा। ठीक है, या ऊपर कहीं कॉर्नर पे आपका नाम, फुल नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, आपका सेक्शन, ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम, ये चारों चीजें जरूर रहेंगी। और असाइनमेंट, अगर 1 असाइनमेंट है तो आप लिखोगे असाइनमेंट 1, 2 असाइनमेंट है तो लिखोगे असाइनमेंट 2, 3 असाइनमेंट है तो लिखोगे असाइनमेंट 3 एंड सो ऑन। पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। सबको ये चीज क्लियर हो गई है? ठीक है, तो मैं अब अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। ठीक है, और लेट मी मार्क योर अटेंडेंस, जस्ट वेट। ओके, तो जिस चीज का मैं नाम बुलाऊंगा वो बच्चा कैमरा ऑन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, हर्ष, अंश और हिराल, आप तीनों अपना